Hello everyone, I am Varun Gupta and this is 97th capsule of English for competitive exams having grammar, word power and comprehension. Let's begin with grammar and usage tip. Policies and principles which have served us so well so far are being discarded with rush to adhere to the orthodoxy of the financial institutions. No error. Now let's find out where may be the error in this sentence. Policies and principles are being discarded. Now please note, this is a sentence. Policy and principles is a subject and are being discarded is a verb. Now this is basically passive voice of present continuous. It's right. Subject is plural, are being plus verb third form. बिल्कुल सही, it's right. Now which policy and principles? Which have served us well so far. जिन्होंने हमको अभी तक बहुत अच्छे से सर्व किया है. Adjective phrase. These lines are describing policies and principles. कौन सी policies, कौन से principles which have served us well so far. जिन्होंने अब तक हमको भरपूर सहारा दिया है. It is right. Okay. To adhere to the orthodoxy of the financial institutions, adhere is followed by to. Correct. To adhere to the orthodoxy of financial institutions, purpose also right, no error. With rush. Now this is very interesting part. With rush or in a rush. In a rush is right, with rush is incorrect. Somebody is in a rush to do something, तो with की जगह आएगा in a rush. Policies and principles which have served us well so far are being discarded in a rush to adhere to the orthodoxy of the financial institutions. तो यहाँ लेखक कह रहा है कि वह नीतियाँ और सिद्धांत जिन्होंने अभी तक हमको अच्छे से काम किया है, अब उन्हें हटाया जा रहा है जल्दबाजी में, ताकि वित्तीय संस्थानों की पुरातन पंथी विचारधारा का पालन किया जा सके. चलिए, लेट अस प्रोसीड. वर्ड ऑफ द डे. The dash of our expedition was still so far away that I felt we would never get there. I felt we would never get there. मुझको ऐसा लगा कि हम वहां कभी भी नहीं जा पाएंगे. The dash of our expedition was still so far away that वो अभी भी इतनी दूर था कि हमारे अभियान का डैश अभी भी इतनी दूर था कि मुझे लगा हम वहां कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे. nadir, टर्मिनस, स्पेक्यूलेशन, अपेक्स, डंजन. देखते हैं मीनिंग्स. नेडिर का मतलब होता है द बॉटम मोस्ट पॉइंट, एकदम नीचे का पॉइंट. द वर्स्ट टाइम और पॉइंट इन समवन्स लाइफ, किसी लाइफ में सबसे खराब समय, सबसे खराब बिंदु. द नेडिर, द बॉटम मोस्ट पॉइंट. टर्मिनस इज द एंड ऑफ ए ट्रेन और बस लाइन. जिस रूट पर कोई ट्रेन चल रही है या बस चल रही है, उसके फाइनल डेस्टिनेशन को कहते हैं टर्मिनस. स्पेक्यूलेशन, व्हेन यू हैव योर आइडियाज और एस्टिमेट अबाउट समथिंग, देन यू आर स्पेक्यूलेटिंग. ये आपके एस्टिमेट्स हैं, यू डोंट नो बट दिस इज व्हाट यू थिंक और व्हाट आइडियाज यू हैव. स्पेक्यूलेशन. अपेक्स इज अपोजिट ऑफ नेडिर, द टॉप और द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग. द नेडिर इज द लोएस्ट पॉइंट, अपेक्स इज द हाइएस्ट पॉइंट. डंजन, a dark underground room which is normally used as a prison. अब बताइए which option is correct, right? Terminus is the right option. The terminus of our expedition, हमारे expedition का final point, end point, final destination was still so far away that I felt we would never get there. Let's proceed, dear friends. Let's come to comprehension. It's from Open. This issue has got प्रिंटेड डेट अगस्त 31, 2020 पर यह आज 22 अगस्त को अवेलेबल हो गया है. COVID-19 may have ruptured economies, but it has also come as an opportunity for a select few, most notably big tech or the so-called GAFAM. These tech Goliaths had been growing steadily, but the pandemic has accelerated the process. Apple recently became only the second company in history to breach the $2 trillion market cap. This is remarkable when you consider that Apple hasn't come up with any groundbreaking device in the way it did under Jobs.
नाउ यहाँ कौन कौन सी चीज़ें आपको गूगल करना चाहिए? GAFAM, Apple, jobs, these are the things that you should know a lot of general facts about. Okay, let's discuss some interesting words and phrases. रप्चर्ड इकोनॉमीज का मतलब होता है इकोनॉमीज को नुकसान पहुंचाना, डिस्ट्रॉयड इकोनॉमीज, इकोनॉमी की ग्रोथ को बर्बाद कर देना. एन अपॉर्चुनिटी फॉर द सेलेक्ट फ्यू, कुछ चयनित लोगों के लिए एक अवसर, कुछ चुने हुए चुनिंदा लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी. फेवरिंग ए स्मॉल ग्रुप बट हार्मिंग अदर्स, एक छोटे से समूह को हेल्प करना लेकिन बाकी सबको नुकसान पहुंचाना, इसे कहेंगे एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ सेलेक्ट फ्यू. The so-called GAFAM. Now, what do you mean by GAFAM? GAFAM stands for the 5 huge companies: Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Collectively call them GAFAM, the so-called GAFAM, तथाकथित GAFAM. Take Goliath. Goliath and David की कहानी आपने पढ़ी होगी. Goliath was a huge creature. So take Goliath, the huge corporations working in the field of technology. तकनीक के क्षेत्र में काम करने वाले बड़े बड़े निगमों को कहा जाता है टेक गोलियस, जो 5 हैं: गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट. टू ब्रीच का मतलब होता है क्रॉस करना, ओवरटेक करना, आगे निकल जाना. मार्केट कैप, ये शॉर्ट फॉर्म है मार्केट कैपिटलाइजेशन का बाजार पूंजीकरण. किसी भी कंपनी के जितने भी शेयर्स वाइडली हेल्ड हैं, पब्लिक की ओनरशिप में हैं, उन सभी की मार्केट वैल्यू को कहा जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन. कम अप विद मतलब सामने लेकर आना, टू ब्रिंग समथिंग, टू प्रेजेंट, टू इंट्रोड्यूस, टू लॉन्च, कम अप विद. ग्राउंड ब्रेकिंग डिवाइस का मतलब होता है बिल्कुल नई कोई चीज, समथिंग वेरी न्यू. पाथफाइंडर, पायनियर, जब कोई चीज आप सबसे पहली बार लेकर आते हैं, देन इट इज योर ग्राउंड ब्रेकिंग प्रेजेंटेशन. अंडर जॉब्स, जॉब्स के अधीन, स्टीव जॉब्स के नेतृत्व में. अंडर मैनेजमेंट ऑफ जॉब्स को कहेंगे अंडर जॉब्स. आइए पूरा समझते हैं. कोविड-19 में हैव रप्चर्ड इकोनॉमीज. हो सकता है कि कोविड-19 ने कई सारी अर्थव्यवस्थाओं को बहुत नुकसान पहुंचाया हो, बट it has also come as an opportunity for a select few. किंतु कुछ चुनिंदा कंपनियों के लिए यह एक बड़े अवसर के रूप में भी आया है. मोस्ट नोटेबली, जिसमें सबसे अधिक ध्यान में देने वाली हैं बिग टेक, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज, और द सो कॉल्ड GAFAM, और वो कंपनियां जिन्हें GAFAM कहा जाता है: गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट. These tech Goliaths, टेक्नोलॉजी क्षेत्र के इन बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैड बीन ग्रोइंग स्टेडीली, ये निरंतर धीरे धीरे बढ़ रहे थे. बट द पैंडेमिक हैज एक्सेलरेटेड द प्रोसेस, लेकिन इस महामारी ने इनके बढ़ने के इस तरीके को, गति को और तेज कर दिया है. एप्पल रिसेंटली बिकेम ओनली द सेकंड कंपनी इन हिस्ट्री टू ब्रीच द $2 ट्रिलियन मार्केट कैप. हाल ही में एप्पल इतिहास की केवल दूसरी कंपनी बनी है जिसने $2 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण के आंकड़े को पार किया है. ओनली द सेकंड कंपनी इन द हिस्ट्री. दिस इज रिमार्केबल. ये बहुत ही स्पेशल है, खास बात है. व्हेन यू कंसीडर, जब आप विचार करें दैट एप्पल हैजंट कम अप विद एनी ग्राउंड ब्रेकिंग डिवाइस इन द वे इट डिड अंडर जॉब्स. जब आप ध्यान दें कि एप्पल जिस प्रकार से जॉब्स के अधीन करता था, उस प्रकार से अभी किसी भी नए आविष्कार या नई ग्राउंड ब्रेकिंग डिवाइस को लेकर सामने नहीं आया है, उसके बाद भी मार्केट कैप का इतना बढ़ना, ये बहुत रिमार्केबल है. और पैंडेमिक के कारण जो प्रोसेस बढ़ा है, उसको इसका श्रेय दिया जा सकता है. थैंक यू फ्रेंड्स. देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. ऑल द बेस्ट.